Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome to my YouTube channel Manu Ishu ACC classes. So in today's video, we are going to deal with the question. It's I think section B question from Kaplan kit of F9. Okay, so if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. And one more thing, just don't forget to hit the bell icon for more updates. Okay, so in this video, we are going to do gamete company question, and I don't know what's the number in your exam kit. I hope you will search this question by the name gamete company. Okay, so the question have a requirement as you all know. So let's first read out the requirement one. If a cash surplus available is 1.5 million, calculate the optimum combination of the projects that gamete company should undertake. ठीक है तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं gamete company has some surplus cash that it wish to invest in a long term project. The market it operates is in recovery from recession and more potential projects are becoming available on the regular basis. The finance director wishes to ensure the best use is made of available cash. A list of potential projects currently available has been made. All projects are divisible and must be started immediately. So in question, just look for whether the project is divisible or indivisible. In case of divisible, we need to find out the profitability index. Then we need to rank those projects as per the profitability index. The higher will be the rank first and lower will be the bottom. And in case of indivisible, we need to find out the project combination as per the trial and error method. That's why these two method for these two method we need to first find it out whether the project is divisible or indivisible. ठीक है? So as we know कि a project divisible है, so first we need to find it out is the profitability index. Okay, and how do we find that? Okay, so first I will make few heading. Okay, project then it is for the initial investment. Okay, and next for the NPV, then PI stand for profitability index, then last one for the rank. Okay, so we do have a 5 project. Okay, so A, B, C, D, E. Okay, initial investment is for the project A 375. They have taken 30 as a common. You can also write it here 30 common. ठीक है, so then 800, उसके बाद 4 से 50, 6 से. ठीक है, NPV 125, 240, 80, 40, 150. अब PI फाइंड करने के लिए वी नीड टू डिवाइड NPV बाय इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एंड सेम कॉपी शिफ्ट करके पेस्ट कर दूंगी सो दैट कि सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा. ओके, नाउ अब रैंक करेंगे. हाईएस्ट विल बी रैंक फर्स्ट. इसमें से हाईएस्ट 0.80, इट विल बी रैंक फर्स्ट. आफ्टर दैट 2, 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को करना है इफ द कंपनी हैज अ कैश अवेलेबल 1.5 मिलियन, मतलब उसके पास 1500 है 30 कॉमन लेने के बाद. तो हमारे पास कैपिटल कितना है 15 से. तो रैंक के अकॉर्डिंग वन कौन सा है प्रोजेक्ट डी. तो अगर डी में इन्वेस्ट किए तो कितना जाएगा डी में इन्वेस्टमेंट 50 और इसका एनपीवी क्या है 40. ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इट इज एनपीवी. सो डी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे पास कितना बच गया. मैं ये रफली कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको. ठीक है, so now after that the second number one project is A and go for it 375. उसका एनपीवी भी ले लो. ओके, देन रिमेनिंग कितना है स्टिल इन्वेस्ट करने के लिए 1075, राइट. उसके बाद थर्ड में हमारे पास है बी प्रोजेक्ट, उसको भी लेते हैं. बी इज 800, इसका एनपीवी इट इज 240. अब रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास
275। अब हमारा प्रोजेक्ट फोर्थ है ई, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 600, बट वी ओनली हैव ए 275 एज ए कैपिटल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड मतलब इन द सेंस 275 इन्वेस्ट करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 0 बच गया। अब एनपीवी निकालने के लिए फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि परसेंटेज कितना इन्वेस्ट किया है हम लोग। ठीक है, 275 इन्वेस्ट किया बट कितना चाहिए था, 600। इट मीन्स वी हैव इन्वेस्ट 0.45, 45.83%। ठीक है, अब यही परसेंटेज लेके जस्ट गो मल्टीप्लाई इट बाय द एनपीवी 150। अब इसको सम करने के बाद अगर ऑप्टिमम एनपीवी पूछा हो तो क्वेश्चन, देन वी विल पुट दिस अमाउंट, बट क्वेश्चन इज आस्किंग, जस्ट वेट एक सेकंड, G19। हाँ, क्वेश्चन इज आस्किंग कि कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होगा। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ई डिविजिबल है, तो ए तो होगा नहीं क्योंकि 26.7% ऑफ ए को डिवाइड किया हुआ, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है हमारा क्लियर कट। ठीक है, so next question, next requirement is before the decision on the project is made, project A becomes unavailable and it is realized that remaining projects are actually indivisible। अब इस प्रोजेक्ट ये इंडिविजुअल हो चुकी है एंड दूसरा प्रोजेक्ट ए अनअवेलेबल है। तो फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हम लोग पीआई के थ्रू नहीं जाएंगे, तो लेट्स डिलीट ऑल दिस वैल्यू, डिलीट कर दिया। ठीक है, सो अब हमारा हो जाएगा, ये सारे हटा दो, डिलीट। अगर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल रहा, ये नॉट नॉट अवेलेबल, एनी डालती हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कर रही थी, हाँ ये इंडिविजिबल है, तो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि जो जो ऑप्शन में दिया उसी का कॉम्बिनेशन करके हम लोग हाईएस्ट ऑप्टिमम बना ले, बेटर रहेगी सारे करने से अच्छा है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, बी सी डी। तो बी सी डी को इन्वेस्ट करने में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आई। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड ये हो जाएगा हमारा एनपीवी। तो हमारा कैपिटल है 1500 और बी सी डी में 800 लगेगा, सी में 4 से और डी में 50, मतलब 1250। हमारा कैपिटल 1500 से बिलो है, वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल एनपीवी देखते हैं, एनपीवी ओके ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सी डी ई, वो भी देख लेते हैं। सी हमारा 450, डी एंड ई ये भी हमारा 1500 से बिलो है, वेल डन। और उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देते हैं सारे को, तो ये एनपीवी भी आ गया। फिर उसके बाद ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी डी ई। सो नाउ बी डी ई, बी हमारा है 800, डी है 50 एंड ई 600। डी हमारा 1500 से बिलो है, कोई बात नहीं। सो बी डी ई, तो 430 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बच गया लास्ट, बी सी डी ई। तो बी सी डी ई करने पे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, बी, ये तो नहीं होगा, आई थिंक ये 1500 से ज्यादा आएगा। आई थिंक ये 1500 से ज्यादा आया, ये नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्ट। ठीक है, नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि हमारा 1500 कैपिटल ही है और एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअल है, सो वी कांट इन्वेस्ट इन द बी सी डी। एक ऑप्शन चला गया। सो नाउ आउट ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑप्शन, हाईएस्ट एनपीवी कौन सा दे रहा है हमारा, बी डी ई। सो वी विल गो फॉर दैट, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पूछ रहा है ना क्वेश्चन। ओके, so next question, which two of the following would be reason why manager may reduce the amount that they are willing to invest as a part of a soft capital rationing। तो पहले कैपिटल रेशनिंग जान लेते हैं। मैं हमारा एनपीवी कहता है अगर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वेस्ट कर लो, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा पॉजिटिव में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। बट
कंपनी के पास उतना सफिशिएंट फंड भी तो नहीं होगा कि इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे कैपिटल रैशनिंग की बात आती है कि इनसफिशिएंट फंड होता है कंपनी के पास, नहीं, सो दैट कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर पाए। उसके अब ये क्यों होती है? ये दो कारण होता है, एक होता है हार्ड कैपिटल रैशनिंग, एक होता है सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग मतलब आपका इंटरनली वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लाइक आपका मैनेजर के पास स्किल्स नहीं है ना। और भी ऑप्शन है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब लाइक पॉइंट रखूंगी। लेट मी ओपन द बुक। ओके, हाँ। तो मैंने क्या बोला, सॉफ्ट कैपिटल रेसनिंग एक होता है कि आपके मैनेजर के पास स्किल ना हो, ठीक है। या फिर आपका हार्ड कैपिटल रेसनिंग क्यों होता है? हो सकता है कि एक्सटर्नली कोई शॉर्टेज आ गई है, फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है बैंक, ये हो सकता है। या फिर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेकार है, मतलब गंदा है, अच्छा नहीं मैनेज करते हो। या फिर जो एसेट दिए थे सिक्योरिटी के लिए, जो पैसे देंगे बैंक, वो आपका लाइक मतलब आपके पास सिक्योरिटी के लिए एसेट ही नहीं है जो बैंक आपको फंड दे, ये भी एक रीजन कह सकते हो। या फिर आपका टीम ही पुअर है जो मैनेज नहीं कर सकता है फंड को, तो ये सब की वजह से आपके पास पैसे मतलब एक शॉर्टेज पड़ सकते हैं, लेकिन मतलब बाहर से भी ले नहीं सकते हो। तो ये हार्ड कैपिटल और सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग का है, एक बार आप बुक पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें से ये बोलता है इन पांचों ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसा पिक करो जो सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। द कंपनी बैंक हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड अवेलेबल फंड। ऑब्वियसली मैंने अभी बोला, जैसे कि आपका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर आपके पास ना एसेट सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको बैंक डिनाई कर देगा फंड के लिए। तो उसके बैंक ने डिनाई कर दिया है, तो ये भी एक हार्ड कैपिटल रैशनिंग में आती है। A debt convenient for which the issue of new share to raise cash. Convenient का मीनिंग क्या होगा? Just let me Google. An agreement, convenient मतलब agreement. A debt agreement forbids. डेप्ट एग्रीमेंट आपका बाहर से ही होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो बैंक वगैरह ही देगा। तो डेप्ट कॉन्वेंट मतलब डेप्ट एग्रीमेंट रिफ्यूज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू राइज ए कैश। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी आपका हार्ड कैपिटल रेशनिंग में जाएगा। मैनेजर बिलीव दैट बेटर क्वालिटी प्रोजेक्ट विल शॉर्टली बी अवेलेबल। अगर मैनेजर बिलीव कर रहा है कि इससे बेटर क्वालिटी का प्रोजेक्ट आ सकता है, तो ये तो इंटरनल फैक्टर है ना, तो इट मीन्स ये सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग को इंडिकेट कर रहा है, सी। एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब आपका, इसको आप चाहे नोट डाउन कर सकते हो। Desire to hold cash in order to be able to deal effectively with unexpected event, मतलब ऐसा आप अभी कैश को होल्ड कर रहे हो सो दैट कि इन फ्यूचर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आएगा तो वहां पे आप उसको यूज करोगे, तो ये भी इंटरनल है, राइट। उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश डिस्करेज शेयर होल्डर फ्रॉम इन्वेस्टिंग फर्दर। तो हमारा तो दो ऑलरेडी पॉइंट मिल चुका है, सी एंड डी, लेकिन लास्ट वाला ये तो स्टॉक मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर है, ये हार्ड कैपिटल रेस्टिंग में जाएगा, सो आपका सी एंड डी, ठीक है। ओके, डी क्या कहता है? द मैनेजर हैव डिसाइडेड दैट दे विल होल्ड 600,000 of available investment cash for 3 months. 3 months is a short term period, as they know that another very good project will become available at that time. Which of the following investment could be suitable to make use of this cash over this period? So हम लोग को 5 ऑप्शन दिया है, जिसमें से कुछ लॉन्ग है कुछ शॉर्ट टर्म है। अब उसको 3 महीने के लिए लाइक इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके बाद उसको फंड चाहिए ना, तो हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑब्वियसली हमारा शॉर्ट टर्म टर्म इन्वेस्टमेंट है। और सेकंड है हमारा लिस्टेड कंपनी शेयर। अब ये शेयर में अब उसका प्राइस फॉल भी हो सकता है, प्राइस फॉल हुआ तो आपको 600 का 600 नहीं मिलेगा, तो ये एक लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी है अनलिस्टेड कंपनी शेयर। अनलिस्टेड कंपनी शेयर में भी रिक्स ही है ना।
क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होती है, अब उसके लिए आपको फिर सेलर ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कहाँ ढूंढोगे? उसमें भी आपका कैश रिटर्न आएगा कि नहीं, टाइम लग जाएगा, तो ये भी आपका एक ऑप्शन नहीं बनता है। इंस्टेंट एक्सेस बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ऑब्वियसली बैंक में रहेगा तो आप जब चाहे एक्सेस कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो फीजिबल। एंड लिस्टेड कंपनी डेप्ट, लिस्टेड कंपनी, दो पूछ रखा था ना, तो ए एंड डी हो गया। और लिस्टेड कंपनी डेप्ट भी आपका एक प्रकार से वैसे ही, जैसे कह सकते हो शेयर प्राइस की तरह, तो रिस्क है कि आपका पैसा लाइक डिपेंड करता है ना कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आपका ए एंड डी, which of the following should not be included in the cash flow forecast? A payment of one of dividend, ऑब्वियस ये तो इंक्लूड होगा, डिविडेंड तो कैश में ही पे होता है। रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू कवर द वैल्यू ऑफ स्टोलन इन्वेंट्री, ऑब्वियसली ये भी कैश में ही होगा। अब डिपेंड करता है किस ईयर में रिसीव हो रहा है, अभी यहाँ पे तो ईयर की बात की नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये करंट ईयर की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैश में होगा। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन अलाउड इन रिलेशन टू न्यू एसेट परचेज, अब डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारे लिए इरिलेवेंट होता है बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है। अब ये टैक्स अलाउ हो या फिर आपका अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इरिलेवेंट है। टैक्स अलाउ में एक चीज बेनिफिट क्या मिलेगी हम लोगों को, टैक्स रिलीफ मिलेगी, तो इसलिए टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन हम लोग के लिए इरिलेवेंट है, बट टैक्स रिलीफ जो इस डिप्रिसिएशन पे मिल रही है वो हमारे लिए रिलेवेंट है, तो इस हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को कैश नॉट इंक्लूडेड पूछ रखा था, तो सी है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।